Hello everyone, welcome to my channel Let's Make Bio Easy. This is the third video from the chapter Life Processes from 10th class, and in the previous two videos we discussed about the autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition in detail, and the link to this video has been given in the description box below, so you can check this out. And in this video we will discuss about human digestive system, digestion in human beings, as well as a small topic of dental caries. So let's start. First of all, first revise the steps in the process of nutrition in animals, which also include human beings. And you should also remember that human beings, including animals, perform holozoic mode of nutrition, which constitutes 5 different steps to perform their nutrition. And these steps are: first is ingestion. It is a process to intake द फूड इनसाइड द बॉडी, मतलब फूड को जब बॉडी के अंदर लेके जाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंजेशन. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, मतलब जिसमें लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में. थर्ड स्टेप्स कम इज एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है? जो डाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्टेड स्मॉल फूड पार्टिकल्स हैं, वो एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, दैट इज एब्जॉर्प्शन. Assimilation is the utilization of the absorbed food, and egestion is the removal of the undigested food from the body. So these are the 5 steps which are involved in the holozoic mode of nutrition and nutrition in human beings. We will discuss each step in detail according to digestion in human beings in further slides. First of all, you should know about what is human digestive system. जो भी ह्यूमंस में न्यूट्रिशन होता है दैट टेक्स प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 parts, the alimentary canal and the glands that are associated with the alimentary canal. Alimentary canal is all the passage that starts from the mouth till the एनस, मतलब जहां से इजेशन होती है और जहां से इंजेशन होती है, वहां से लेके एनस तक का जो भी पैसेज आता है, रास्ते में जो कुछ भी आता है, उस पूरे पैसेज को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल. एंड द ग्लैंड्स क्या है? ग्लैंड्स वो होते हैं जो सर्टेन टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जो की फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है. सो वो वाले ग्लैंड्स प्लस एलिमेंट्री कैनाल कॉन्स्टिट्यूट्स आवर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीजें आती हैं? दैट इज माउथ, esophagus also known as food pipe, stomach, then small intestine, then large intestine. And the glands that it is associated with human digestive system are salivary glands जो कि mouth में होते हैं, liver as well as pancreas. So human digestive system is constituted of alimentary canal as well as glands. Glands are salivary glands, livers and pancreas. Alimentary canal is starting from mouth to large intestine, is whole the passage is known as the alimentary canal. Now, nutrition in human beings. First of all, ingestion. Ingestion takes place through mouth. We have a specific opening, मतलब human beings के पास एक specific opening है जिससे हम food को ingest करते हैं, and that process is known as ingestion. Second process is digestion. अब माउथ में फूड चला गया है और माउथ के जो भी ये कैविटी होती है जिसमें टीथ है, टंग है और स्लाइवरी ग्लैंड्स है, माउथ के ओपनिंग को या माउथ को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी, जिसमें 3 चीजें हैं, टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स. तो ये तीनों चीजें हेल्प करते हैं इधर फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड और केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड. टीथ हेल्प्स इन कटिंग ऑफ द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस एंड च्यू इट एंड ग्राइंड इट, मतलब ये क्या हो गया? फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड. स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या है? जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं. स्लाइवा क्या है? एक वाटरी लिक्विड होता है, एवरीबॉडी नोज, प्रोड्यूस बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसमें कि कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. और टंग क्या करता है? टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्लाइवा सो दैट इट कैन बी इजीली स्वेलोड, मतलब हम अंदर इजीली निगल सके, उसमें टंग हेल्प करता है मिक्सिंग ऑफ फूड विद द स्लाइवा. स्लाइवरी अमाइलेज क्या है? अब हमने क्या बोला कि स्लाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं? स्लाइवा. स्लाइवा क्या है? वाटरी लिक्विड है जिसमें कि कुछ सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वो एंजाइम क्या है? स्लाइवरी अमाइलेज.
जो कि प्रेजेंट होता है इन द स्लाइवा secreted by the salivary glands. ये किस पे एक्ट करता है? Amylases always act on the sugar and convert it into the simpler sugars. अब माउथ में फूड है, फूड की डाइजेशन होनी है फिजिकल एज वेल एज केमिकल. फिजिकल डाइजेशन मतलब जो ब्रोकन हम बड़ा पीस लेते हैं कुछ भी फूड का, उसको छोटे पीसेस में हम ग्राइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ, ये हुई फिजिकल डाइजेशन. एंड केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ salivary amylase which is secreted through salivary glands. Salivary amylase act on the carbohydrates also known as sugars which convert into the simpler sugars. So let me show you. This is a big food particle which is converted into the smaller food particles. So this is the physical digestion of food which occurs with the help of the teeth. And complex sugars or carbohydrates, we can also say starch, like which is present in the food, is converted into the simpler sugars with the help of salivary amylase in the mouth. Saliva is related to the salivary glands and which contains salivary amylase. So digestion starts as soon as we put food in our mouth. Now second step in the process of digestion. अभी ये digestion ही चल रही है. अब food में जो भी digestion mouth में जो भी digestion होनी थी वो हो गई है. उसके बाद food को कहाँ जाना है? To the stomach. Stomach में कैसे जाता है? With the help of food pipe also known as esophagus. After slight digestion in the mouth, the food is swallowed and goes down the food pipe and carries it to the stomach. अब जो ईसोफेगस है वो कैसे लेके जाता है फूड को थ्रू स्टमक? उस मूवमेंट को, ईसोफेगस की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है कि when the wall contracts, the food is pushed down and when it relaxes, the food goes down. This contraction as well as relaxation movement of the esophagus is known as the peristaltic movement, through which it pushes the food into the stomach. And you should also remember that no digestion takes place in the esophagus. Esophagus के पास कोई भी enzymes नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ तरह की digestion नहीं होती. It is just a passage for delivering food from the mouth towards the stomach. Now, food reaches the stomach. It is a J-shaped organ present on the left side of the abdomen. हमारे पेट के left side पे होता है stomach. As you can see, this is the stomach. J-shaped organ है जो कि abdomen के left side पे present होता है. इसमें क्या होता है? जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है ईसोफेगस की, सिमिलरली स्टमक की भी सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. दैट इज रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जिसके थ्रू फिजिकल डाइजेशन होती है फूड की. अलोंग विद द physical digestion of food in the stomach, chemical digestion also takes place in the stomach with the help of gastric juices. अब gastric juices क्या है? 3 टाइप के secretions करता है stomach. That is hydrochloric acid, enzyme pepsin as well as mucus. Pepsin का क्या काम है? जो proteins को into the smaller molecules convert करता है. Pepsin converts protein into the smaller molecules. अब पेप्सिन एक्टिवेटेड नहीं होता जब वो सिक्रीट होता है, तब वो एक्टिवेटेड नहीं होता. लेकिन जैसे ही वो एसिडिक एनवायरनमेंट में आता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में सिक्रीट होता है तो वो एक्टिवेट होता है एंड देन इट वर्क्स प्रॉपरली. देन इट कन्वर्ट प्रोटीन, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल टू द स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. तो HCl का फंक्शन क्या हुआ? First function of HCl is to activate pepsin that is secreted by the gastric glands. Second function of the hydrochloric acid is to kill bacteria that come in the stomach with the food. अब जो भी फूड के साथ अगर कुछ आउटसाइड बैक्टीरिया आया है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन किलिंग ऑफ दैट बैक्टीरिया. हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मतलब 2 फंक्शन हुए. एक तो पेप्सिन को एक्टिवेट करना है उसको स्टमक में. सेकेंड इज टू किल एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट कम्स इन विद द फूड इनटू द स्टमक. और पेप्सिन क्या करता है? डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. अब म्यूकस का क्या फंक्शन हुआ? म्यूकस
क्या करता है, म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सबको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर हम इसको, अगर स्टमक में ये ऐसे ही सिक्रीट होता रहे विदाउट एनी लाइनिंग और एनीथिंग, तो ये स्टमक की वॉल को खराब करना शुरू कर देता है। इट विल स्टार्ट इरोडिंग द स्टमक लाइनिंग, जिसकी वजह से स्टमक अल्सर्स हो जाते हैं। आपने सुना होगा अल्सर हो गए किसी को, वो इसी वजह से होते हैं। अगर म्यूकस नहीं है स्टमक की वॉल में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो स्टमक वॉल की लाइनिंग है वो इरोड होना शुरू हो जाती है, दैट कॉजेस स्टमक अल्सर। सो म्यूकस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द स्टमक वॉल फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब पहले माउथ में क्या था, माउथ में क्या था, स्लाइवरी अमाइलेज, जिसने कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया था। स्टमक में आके क्या हुआ है, पेप्सिन एंजाइम है जिसने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया है। अभी हमारे फैट्स डाइजेस्ट नहीं हुए हैं स्टमक तक। आफ्टर दैट स्टमक के बाद फूड, as you can see, complex protein molecules are converted into smaller protein molecule with the help of pepsin in the presence of hydrochloric acid. Hydrochloric acid helps in activation of enzyme pepsin. नाउ मूविंग ऑन, जो स्टमक के बाद जो फूड है वो कहाँ पास ऑन होता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यू टू इट्स विड्थ बोलते हैं, क्योंकि ये विड्थ में पतला होता है लेकिन लेंथ में इट इज वेरी लार्ज, that is why it is the largest part of the alimentary canal. अब partial digestion हो गई स्टमक में, उसके बाद फूड passes on to the small intestine. अब फूड की कंप्लीट डाइजेशन जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन अपने इंटेस्टाइनल जूसेस भी सिक्रीट करता है, और इट ऑल्सो रिसीव्स secretions from two glands, that is liver as well as pancreas. Let me show you. This is the stomach. Now food passes on to the small intestine. This internal organs, this is all small intestine, and this big one is large intestine. First from stomach, food passes on to the small intestine. Here it comes, and this is small intestine, and small intestine also receives secretion from the two glands, that is liver, this is liver, and the pancreatic juice. Both these secretion goes into the small intestine where it acts on the food. Now liver secretes an enzyme that is known as bile. ये greenish yellowed liquid होता है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में आफ्टर सिक्रेशन। मतलब लीवर ने सिक्रेट कर दिया तो वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा जब तक उसकी जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरत होगी देन गॉल ब्लैडर से सिक्रीट हो जाता है बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बाइल क्या है, ये एल्केलाइन होता है नेचर में, जो कि एसिडिक इन नेचर होता, एल्केलाइन इन नेचर है, ताकि जब स्टमक से एसिडिक फूड आता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ताकि पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एक्ट कर सके उस पे। बाइल ऑल्सो कन्वर्ट फैट इन द फूड इनटू द स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब बाइल के दो फंक्शन हुए। बाइल को कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करता है। स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। बाइल खुद एल्केलाइन इन नेचर होता है, एल्केलाइन इन नेचर, ताकि जो भी एसिडिक फूड स्टमक से आया है, एसिडिक फूड क्यों है वो, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। जो भी एसिडिक फूड आया है स्टमक से उसको एल्केलाइन कर देता है ताकि उस पे पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्ट कर सके। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स क्या हुए, जो भी पैंक्रियास से एंजाइम्स आएंगे। सेकेंड फंक्शन ऑफ बाइल इज टू कन्वर्ट फैट इन द फूड इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। अब माउथ में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हुई थी, स्टमक में प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट्स की डाइजेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ बाइल। ओके, देन पैंक्रियाज is also situated parallel and beneath the stomach। तो पैंक्रियाज भी क्या करता है, जो अपने पैंक्रियाटिक जूसेस होते हैं वो सिक्रीट करता है into the small intestine। Along with the bile, pancreatic juices also act on the food that is present in the small intestine। अब पैंक्रियाटिक जूसेस में क्या क्या है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। अमाइलेज
जो स्लाइवरी अमाइलेज था और पैंक्रियाटिक अमाइलेज है, दोनों का सिमिलर फंक्शन है, दे एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, दे एक्ट ऑन प्रोटीन, ट्रिप्सिन एंजाइम एक्ट्स ऑन प्रोटीन, लाइपेज एक्ट्स ऑन द फैट्स। लेट मी शो यू। लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स थे, बाइल एक्ट किया, वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स बन गए। उसके बाद जो पैंक्रियाटिक एंजाइम में लाइपेज प्रेजेंट है, पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस में लाइपेज प्रेजेंट है, वो उसको और ज्यादा स्मॉलर फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। देन जो भी स्टार्च कॉम्प्लेक्स शुगर्स प्रेजेंट रह गए थे फूड में, जिसकी माउथ में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हुई, तो वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से इनटू द स्मॉलर शुगर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। देन द ट्रिप्सिन प्रेजेंट कन्वर्ट्स द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू द पेप्टाइड्स, स्मॉलर पेप्टाइड्स। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक क्या हुआ, लीवर के सिक्रीशन आए, दैट इज बाइल विच कन्वर्ट लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। और पैंक्रियाज के सिक्रीशन आए, जिसमें क्या था, लाइपेज था, पैंक्रियाटिक अमाइलेज था और ट्रिप्सिन था। लाइपेज एक्ट करता है ऑन द फैट मॉलिक्यूल्स, अमाइलेज एक्ट करता है ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स, एंड ट्रिप्सिन एक्ट करता है ऑन द प्रोटीन। अभी तक दो ग्लैंड्स के सिक्रीशन आए थे। अभी इंटेस्टाइनल के खुद के जूसेस भी होते हैं। द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनल जूसेस। और ये जो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंप्लीट डाइजेशन करके उनको स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। So the process of digestion completes in the small intestine as large insoluble molecules are completely converted into the small water soluble molecules. तो मतलब जो भी digestion वाला process है वो सारा का सारा small intestine में आके खत्म हो जाता है. It starts from mouth and completes in the small intestine. देन आफ्टर डाइजेशन फूड की एब्जॉर्प्शन होनी है. फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ होनी है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही हो जाएगी. आफ्टर द डाइजेशन फूड पासेस थ्रू द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गोज इनटू द ब्लड. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड. क्योंकि अब फूड की यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हुई है, तो यहीं से जो भी डाइजेशन होनी, एब्जॉर्प्शन होनी है डाइजेस्टेड फूड की, वो यहीं से हो जाएगी. और इसमें एक स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, विच आर नोन एज द विलाई, विच हेल्प्स इन absorption of the food. These are the villi, finger like projections which are present inside the small intestine wall. ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जितने ज्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होंगे उतना इजीली फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा. ये स्पेशल मॉडिफिकेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन की फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. और ये जो विलाई है, ये इसके नीचे बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं दैट कैन एब्जॉर्ब फूड इजीली एंड इट रीचेस टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी आफ्टर एब्जॉर्प्शन. अंडरस्टूड. अब कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी कहाँ हुई, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई. एब्जॉर्प्शन भी कहाँ हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड विद द हेल्प ऑफ विलाई. विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इट ऑल्सो इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स. इसके नीचे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं ताकि जो भी फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो इजिली ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी को जा सके. एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होना है, एसिमिलेशन. जो भी ब्लड कैरी करता है डाइजेस्टेड फूड को, उसको यूटिलाइजेशन हो जाती है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए बॉडी के. तो ब्लड एक बार ब्लड में पहुंच गया और एवरी सेल के पास पहुंच गया, तो सेल्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उस फूड को यूज कर लेते हैं. दैट प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन. आफ्टर एसिमिलेशन इजेशन होनी है. जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रह गया है उसकी रिमूवल होनी है. अब फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से टूवर्ड्स लार्ज इंटेस्टाइन जाता है.
जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट है जो फूड का वो वापस बॉडी में चला जाता है और जो सॉलिड वेस्ट रह जाता है, सॉलिड वेस्ट इज फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम अ ओपनिंग, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। एनस के थ्रू जो भी सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है वो रिमूव हो जाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ आवर टीथ, now this is our teeth. The outermost covering of the teeth is known as enamel. जो भी hardest part है that is enamel, outermost covering. Underneath the enamel is dentine. This structure is dentine. और डेंटाइन के नीचे क्या है, बहुत सारा पल्प कैविटी है जिसमें कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स आती हैं। नर्व्स जो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द ब्रेन एज वेल एज ब्लड वेसल्स जो भी ब्लड सप्लाई करते हैं हमारे टीथ को। ये तीन स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज आउटरमोस्ट कवरिंग, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ इज इनेमल आउटरमोस्ट कवरिंग। उसके नीचे क्या है, डेंटाइन है। डेंटाइन के नीचे हमारे ब्लड वेसल्स वगैरह या नर्व्स हैं जो भी, उस कैविटी को क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी। अब डेंटल कैरीज क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया और इम्प्रॉपर डेंटल केयर। अब जब हम कोई भी दांत प्रॉपरली साफ नहीं करते हैं और उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं, उसकी वजह से स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं टीथ में, उनको क्या बोलते हैं, डेंटल कैरीज। सो अब मैं आपको समझाती हूँ ये होता कैसे है। वेन एवर वी ईट शुगरी फूड, जब भी हम ज्यादा मीठा खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, उस पे जो भी बैक्टीरिया के एसिड्स हैं, बैक्टीरिया उनको डिसॉल्व करने के लिए कुछ एसिड सिक्रीट करता है और उस एसिड से जो भी हमारे टूथ का इनेमल और डेंटाइन है उसमें जो कैल्शियम होता है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। जब कोई बैक्टीरिया शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड सिक्रीट करेगा, उससे जो हमारे टूथ का जो भी आउटर मोस्ट कवरिंग थी दैट इज एनेमल और डेंटाइन, वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। उस डिसॉल्व होने की वजह से अब कैविटीज हो जाएंगी, छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, ये छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। उस होल्स की वजह से अब ये लेयर इनेमल और डेंटाइन लेयर तो हमारी एक्सपोज हो गई है, उसके नीचे क्या थी, ब्लड वेसल्स थी, और वो ब्लड वेसल्स या नर्व्स जो हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। एक्सपोज हो गई तो अब जब भी दोबारा हम बैक्टीरिया एक्ट करेगा उस पे, अब दोबारा बैक्टीरिया एसिड सिक्रीट करेगा तो वो जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं या नर्व एंडिंग्स है उसको इरिटेट करता है, दैट कॉजेज द टूथेक। मतलब अगर हम प्रॉपर टीथ क्लीन नहीं करते हैं आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड्स, उसकी वजह से वो बैक्टीरिया एक्ट करना शुरू कर देता है, एक्ट करेगा और टूथ का इनेमल और डेंटाइन जो पार्ट है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हमें ज्यादा पेन होती है। तो वी शुड ऑलवेज क्लीन आवर teeth after eating anything, especially sugary foods or before the bedtime, for proper hygiene of our teeth. Always remember to clean our teeth after eating any meal. Thank you so much for watching.